Hello students, welcome to the 7th session on chapter number 5 arithmetic progressions. In this video we'll be doing question number 4 to question number 12 of exercise 5.3. Starting with question number 4. How many terms of the AP 9, 7, 25 and so on must be taken to give a sum of 636? तो AP यहाँ पे given है हमें. AP is 9, 17, 25 and so on. और हमें यहाँ पे सम कितना चाहिए? सम शुड बी 636. सो सम इज 636. So if the AP is 9, 17, 25 and so on, so that means the value of first term is 9. The common difference, this will be A2 minus A1. The value of second term minus first term, so this will be 8. And we know the sum. So applying the formula for Sn is n by 2 2a plus n minus 1 multiplied by d. Sn, this is 636 is equal to n by 2. 2a, value of a is 9 plus n minus 1 multiplied by d, value of d is 8. Okay, so 636 will be equal to n by 2. 9 2s are 18 plus 8 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 8n minus 8. Now 636 is equal to n by 2. 18 minus 8, this is 10 plus 8n. 636 is equal to, अब ये n by 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 5n. 10 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 पे, 5n प्लस n by 2 multiplied by 8n. 2 और 8 cancel out होके 4, so this will become 4n square. So the quadratic equation जो बनेगी यहाँ पे that will be 4n square plus 5n minus 636 is equal to 0. तो अब हमें यहाँ पे दो नंबर इस तरीके से चूज करना है कि प्रोडक्ट जो है वो आना चाहिए 4 multiplied by 636 and the sum should be 5. तो अगर हम फैक्टर्स इसके कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो आएंगे हमारे पास 53 and 48. तो 53n minus 48n minus 636 is equal to 0. तो पहले दो से हम कॉमन ले सकते हैं n, अंदर बचेगा 4n plus 53 और नेक्स्ट टू टर्म से वी कैन टेक आउट minus 12 एज कॉमन, तो अंदर बचेगा 4n plus 53 is equal to 0. तो n minus 12 multiplied by 4n plus 53 equal to 0. So that means either n minus 12 equal to 0 or 4n plus 53 equal to 0. So n की वैल्यू क्या क्या आएंगी? So either n will be 12 or n will be minus 53 upon 4. अब n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है. अब नंबर ऑफ टर्म्स तो नेगेटिव हो नहीं सकती. So minus 53 upon 4, this will be rejected as number of terms cannot be negative or in fraction. ना फ्रैक्शन में हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है. Therefore नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 12. जो n की वैल्यू 12 थी, दिस विल बी द आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. The first term of an AP is 5. So we are given that value of A is 5. The last term is 45. AN, this is 45. And the sum is 400. SN, this is given as 400. Find the number of terms and the common difference. So we have to find the value of N and the value of D. So SN का फॉर्मूला हमने लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पे A और AN पता है, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे n by 2 A plus AN. बिकॉज हमें यहाँ पे SN पता है, A पता है, AN पता है. So the only variable that we do not know is 9. तो SN की वैल्यू इज 400 is equal to n by 2
A की value is 5 and an this is 45. So 400 will be n by 2 multiplied by 5 plus 45, this is 50. So 400 into 2 divided by 50, this will be equal to n. 0 से 0 cancel हो गया, 5 8 is 40 and 8 2 is 16. So value of n will be 16. So number of terms तो आ गया हमारे पास 16. This. Now we have to find the common difference. an किसके इक्वल है? a plus n minus 1 multiplied by d. an is 45 is equal to a plus n minus 1 into d. 5 उधर गया तो ये हो गया 40 is equal to 15 d. तो d कितना आएगा? d will be 40 divided by 15. 5 से कैंसिल हुआ 8, 5 से कैंसिल आउट हुआ 3. So the common difference will be 8 upon 3. d will be 8 upon 3. और हमें यही दो चीजें निकालनी थी, एक d निकालना था और एक n निकालना था, नंबर ऑफ टर्म्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. The first and the last term of an AP are 17 and 350. So में क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म a, this is 17 and the last term an, this is 350. If the common difference is 9, common difference भी दे रखा है 9. How many terms are there and what is their sum? तो हमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और उसके बाद हमें सम निकालना है. तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं. an का फॉर्मूला इज a प्लस n minus 1 into d. an is 350, a की वैल्यू 17 प्लस n minus 1 और d की वैल्यू इज 9. 17 लेफ्ट साइड पे गया तो 350 minus 17 दिस इज 333 is equal to n minus 1 into 9. So n minus 1 कितना आ गया? 333 divided by 9. 3 से गया 3, 3 से गया 111. अभी 3 से कैंसिल हुआ, 3 3 is 9, बचा 21 which is 37. So the value of n will be, अब n minus 1 की वैल्यू 37 है तो n will be 38. राइट साइड पे जब 1 जाएगा तो it will become plus 1. 37 plus 1 is 38. Now we have to find the sum Sn. अब क्योंकि हमें यहाँ पे a भी पता है an भी पता है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दूसरा वाला. Sn is n by 2 a plus an. n by 2 तो ये हो जाएगा 38 upon 2 multiplied by a which is 17 plus an which is 350. a और an दोनों पता है तो ये आएगा 19 multiplied by 350 plus 17, 367. So this is 19 multiplied by 367. 19 into 367 which is 6973. Okay, so this will be the answer, the sum of all the terms. Fine. Moving on to question number 7. Find the sum of first 22 terms of an AP. The common difference is 7. So we have to find S22. The common difference is 7 and the 22nd term this is 149. अब अगर A22 पता है तो हम यहाँ से पहले A की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म होगी वो निकाल सकते हैं. सो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिस इज 149. अगर 22 है तो यहाँ पे 22 माइनस 1 आएगा. A प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू इज 7 इज इक्वल टू 149. A प्लस 7 1 is 7, 7 2 is 14 is 149. So the value of A will be 2. तो फर्स्ट टर्म तो मिल गई हमें 2. तो अगर हमें S22 निकालना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं Sn का. Sn इज n by 2 a plus an. क्योंकि अगर हमें लास्ट टर्म पता है, मतलब अगर S22 निकालना है तो लास्ट टर्म विल बी A22, वो हमें दे रखा है. तो S22 का फॉर्मूला हम ये लगा सकते हैं 22 by 2 n by 2 a plus an. 22 by 2 multiplied by a plus A22. a हम लोग निकाल चुके हैं which is 2 and A22 this is 149. So this will become 11 multiplied by 151
11 into 151. So this is 1661. So the value of sum of first 22 terms will be 1661. Okay. Question number 8. Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18. तो सेकेंड टर्म हमें दे रखी है 14 और थर्ड टर्म दे रखी है 18. हमें क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना. कॉमन डिफरेंस क्या होता है? अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें पता है तो आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म. तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय finding the difference of A3 and A2. So A3 minus A2 will be the common difference. A3 is given as 18 and A2 is given as 14. कॉमन डिफरेंस तो आ गया 4. अब हमें A भी चाहिए, फर्स्ट टर्म्स होगी. तो A2 मतलब A प्लस डी, इसकी वैल्यू में दे रखी है 14. एक D की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो A प्लस 4 इज 14. सो द वैल्यू ऑफ A विल बी 10. अब A पता चल गया हमें, D पता चल गया. अब हमें क्या निकालना है? Sum of first 51 terms. That means we have to find S51, which is 51 by 2, 2a plus 50d. n by 2, 2a plus n minus 1 into d. यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज किया सम का. n by 2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 multiplied by d. ये हो गया 51 by 2. 2a की वैल्यू इज 10 प्लस 50d. d की वैल्यू कितनी है? d is 4. So this will be 51 by 2 multiplied by 20 plus 50 into 4 is 200. So this will be 51 by 2 multiplied by 220. So this is 51 multiplied by 110. And 51 multiplied by 110, this is 5610. So the sum of first 51 terms will be 5610. Okay. Question number 9. If the sum of first 7 terms of an EP is 49, so S7 is given as 49 and 17 terms, matlab S17, this is given as 289. Find the sum of first n terms. हमें पहली n terms का sum निकालना. So S7, this is 7 by 2, 2a plus 6d, this is 49. इस sum का हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? n by 2, 2a plus n minus 1 into d. तो यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7 minus 1 आएगा 6. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 7 7 जा 49, ये तो कैंसिल आउट हो गया. यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं. तो अगर हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा a प्लस 3d which is 7. 2 से 2 कैंसिल. So the value of a plus 3d will be 7. This is the first equation. Similarly, अब हम यहाँ से S17 से इक्वेशन बना सकते हैं. S17 से क्या बनेगी? 17 by 2, n by 2, 2a plus n minus 1, मतलब 17 minus 1 into d, which is 289. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. ये हो गया 17 by 2 multiplied by 2a plus 17 minus 1, this is 16d is equal to 289. 17 17 are 289, 17 का स्क्वायर होता है 289. 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा a plus 8d, this is 17. तो सेकेंड इक्वेशन आ गई, a plus 8d की वैल्यू है 17. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व करके हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं. So a plus 8d, this is 17 and a plus 3d, this is 7. इन दोनों को कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट किया तो a से a कैंसिल आउट हो गया. 8d minus 3d, this is 5d is equal to 10. So d will be equal to 2. कॉमन डिफरेंस 2 आ गया. अब अगर कॉमन डिफरेंस पता है तो हम यहाँ से a निकाल सकते हैं. पुट d is equal to 2 in इक्वेशन नंबर 1. ये हो गया a plus 3d 7.
a प्लस 6 इज 7, तो a आ गया 1। अब a पता चल गया, d पता चल गया, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब n की वैल्यू दे नहीं रखी है कि n की वैल्यू क्या है, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ n ओनली। सो Sn का फॉर्मूला n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई टू क्योंकि n की टर्म्स में चाहिए, वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड वैल्यू ऑफ d इज 2। क्या आएगा सिंप्लीफाई करके? n बाई टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 2n माइनस 2। माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, सो n बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 2n, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा n इंटू एन विच इज n स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। Sn की वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। Show that A1, A2, A3 and so on till AN forms an AP where AN is defined as below। ये पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, हाईलाइटेड वाला। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ये दोनों पार्ट से पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो पहले हमें शो करना है कि A1, A2, A3 से लेके AN जो आ रहा है ये AP फॉर्म करेगा, और AP फॉर्म कर रहा है इसका मतलब हमें क्या शो करना पड़ेगा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो पहले हम A1 निकालते हैं। तो अगर AN की वैल्यू 3 प्लस 4n है, A1 कितना है? A1 मतलब n की जगह पे 1 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 विच इज 7। A2 मतलब 3 प्लस 4 इंटू 2, ये हो गया 8 और 3 11। A3 मतलब 3 प्लस 4 इंटू 3 विच इज 4 3 12, 12 और 3 15। इस तरीके से आता है। अब हमें क्या शो करना है कि ये AP में है। तो अगर अच्छा एक और टर्म निकाल लेते हैं, A4, 3 प्लस 4 इंटू 4 विच इज 16 प्लस 3 19। तो अगर हम यहाँ पे A2 माइनस A1 निकालें तो दिस विल बी 11 माइनस 7 विच इज 4। अगर हम A3 माइनस A2 निकालें तो दिस इज 15 माइनस 11 विच इज अगेन 4। और अगर हम A4 माइनस A3 निकालें तो ये आएगा 19 माइनस 15 विच इज अगेन, क्योंकि सारे डिफरेंसेस ये 4 आ रहे हैं, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। ये जो सीक्वेंस बन गया अभी ये 7 11 15 19 सो ऑन जो भी आगे बनेगी, सो दिस विल बी एन AP। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, सो वी हैव टू फाइंड S15। फॉर्मूला क्या बनेगा? 15 बाई 2 2a प्लस 14d, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 15 माइनस 1 विच इज 14d। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो दिस विल बी 15 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ a इज 7 विच इज द फर्स्ट टर्म यहाँ पे, प्लस 14d, d की वैल्यू कितनी है? 4। जो गैप आया था यही कॉमन डिफरेंस। So this will become 15 by 2 multiplied by 14 plus 14 into 4 which is 56। So ये आ गया 15 by 2 multiplied by 56 and 14 this is 70, cancel out हो गया 35। 35 multiplied by 15 which is 525। तो अगर हम इस सीक्वेंस में 7 11 15 19 एंड सो ऑन अगर हम कैलकुलेट करें, इसमें 15 टर्म्स का जो सम आएगा दैट विल बी 525। तो कई बार यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मिस कर देते हैं, शो दैट A1 A2 A3 AN फॉर्म्स एन AP, डायरेक्टली S15 निकाल देते हैं। तो हमें ये पहले शो करना है, दोनों के अलग अलग वेटेज रहती है, जब मार्किंग स्कीम होती है उसमें अलग अलग वेटेज होती है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। यहाँ पर भी सेम है, AN हमें दे रखा है, पहले शो करना है AP है, फिर उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालें। तो AN इज 9 माइनस 5n। पहले हम A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे। A1 कितना आएगा? 9 माइनस 5 इंटू 1 विच इज 4। अगला आएगा 9 माइनस 5 इंटू 2 विच इज 9 माइनस 10 विच इज माइनस 1। A3 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3 9 माइनस 15 माइनस 6
and A4 is 9 minus 5 into 4, which is 9 minus 20 माइनस का 11. अब AP शो करना है तो A2 माइनस A1 निकाला, -1 माइनस 4 विच इज -5. अगर A3 माइनस A2 निकालेंगे -6 माइनस -1 विच इज अगेन -5. और अगर हम A4 माइनस A3 निकाले -11 माइनस -6 विच इज ऑल्सो -5. कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3. Therefore, it is an AP. तो ये AP फॉर्म हो गया. नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. S15 will be 15 by 2 2A plus 14B. बस वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर. कितना आएगा? 15 by 2 मल्टीप्लाइड बाई 2A. A की वैल्यू इज 4 प्लस 14 इंटू D. D की वैल्यू कितनी है? -5. ये हो गया 15 by 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 और 14 इंटू 5 इज 70 माइनस का 70. तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू माइनस का 62. 2 से कैंसिल आउट हो गया 31 पे एंड 31 मल्टीप्लाइड बाय 15 ये हो जाएगा 465. और ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का 465. So this is the answer. Sum of first 15 terms of this AP will be -465. Okay. Question number 11. If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square. तो यहाँ पे हमें Sn दे रखा है 4n minus n square. और हमें क्या क्या फाइंड करना? What is the first term? What is the sum of first two terms? What is the second term? And similarly find the third term, 10th term and the nth term. बहुत सारी चीजें निकालनी है इसमें. Sn is 4n minus n square. तो Sn होता क्या है बेसिकली? Sn is A1 plus A2 plus A3 plus A4 and so on till An. इसका मतलब ये है कि Sn का मतलब A1 से लेके An तक का सम. तो अगर हम S1 की बात करें, S1 क्या हो जाएगा? Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स, जो पहली n टर्म्स होंगी फ्रॉम 1 से लेके n वहां तक का सम है. S10 मतलब A1 A2 A3 से लेके A10 तक का सम. वैसे अगर हम S1 निकालें, अगर हमने n की वैल्यू 1 लगा दी तो S1 कितना आएगा? 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर. 4 माइनस 1 विच इज 3. और लॉजिकली S1 का मतलब क्या है? S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म मतलब पहली टर्म होगी. दैट मीन्स जो पहली टर्म होगी A1 दैट विल बी इक्वल टू 3. और पहला हमें यही चीज निकालनी थी. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज S1. तो इसका मतलब ये दैट इज S1 का मतलब कि S1 जो है वो लॉजिकली फर्स्ट टर्म ही. नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? व्हाट is the sum of first two terms. That means we have to find S2. A1 plus A2 निकालना. तो n की वैल्यू 2 लगा देंगे. 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर which is 8 minus 4 4 के इक्वल है. तो S2 कितना आ गया? 4. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 4. ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट जो हमें फाइंड करना है. नेक्स्ट हमें फाइंड करना है सेकेंड टर्म. S2 का मतलब क्या है? S2 इज A1 प्लस A2. पहली दो टर्म्स का सम. S2 की वैल्यू 4 है, A1 की वैल्यू 3 दे रखी है और A2. तो A2 किसके इक्वल आएगा? 4 माइनस 3 विच इज 1. दैट मीन्स द सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू 1. सेकेंड टर्म निकालनी थी तो सेकेंड टर्म कितनी आ गई? 1. आगे हमें निकालना है थर्ड, 10th और nth टर्म. अगर हमें A2 पता है, A1 पता है तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1. ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बाकी टर्म्स निकालने के लिए चाहिए हमें. थर्ड निकालने के लिए, 10th निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस चाहिए. सो A2 इज 1 एंड A1 इज 3. सो दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस विल बी -2. सो अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 2D. A की वैल्यू 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2. तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 विच इज -1. A3 आ गया -1. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द 10th टर्म. A10. A प्लस 9D. A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू -2.
So this is 3 minus 18, which is minus 15. ये 10th टर्म आ गई. Similarly, we can find the nth term. अब nth term जो होगी वो n के terms में ही होगी. an is a plus n minus 1 into d. a की वैल्यू 3 प्लस n minus 1 into d की वैल्यू minus 2. तो क्या आएगा? 3 minus 2n plus 2, which is 5 minus 2n. So this is the answer. सारी चीजें निकाल ली हमने. फर्स्ट टर्म निकाल दी, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकाल दिया, सेकंड टर्म निकाल चुके हैं, थर्ड भी निकाल दिया, 10th भी निकाल दिया और nth टर्म भी निकाल दिया. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 12th, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. तो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल है, मतलब जो 6 के मल्टीपल्स होंगे, जो 6 के टेबल में आते हैं. सो द फर्स्ट टर्म विल बी 6, क्योंकि 6 का पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है जो कि 6 से डिविजिबल. 6, 12, नेक्स्ट विल बी 18, 24 एंड सो ऑन, एंड दिस इज अप टू 40 टर्म्स, क्योंकि हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम चाहिए. सो हियर a is 6, the common difference is 12 minus 6, which is again 6, and number of terms is 40, and we have to find the sum of these terms, sum of 40 terms. So this will be n by 2, 2a plus n minus 1, 39 into d. So this is 20 multiplied by 2 into 6 plus 39 into 6. 6 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और अंदर बचेगा 2 plus 39. So this is 120 multiplied by 2 plus 39 is 41. 120 multiplied by 41. So this will be 120 into 41, which is 4920. So that means the sum of all the terms from 6, 12, 18, 24 and so on till 40 terms, this will be 4920. Okay. So this is the end of today's session. We'll continue from question number 13 in the next video. Thank you so much.